एकदम सामने आपके सामने देखिए सेंटर हो गया अभी लेफ्ट wonderful song, very well sung. Yes. Love the mood of the song. Tell us, what was the mood like while it was being shot between you and Arvind? Well, I mean, the mood is there for you to see. You know, it's a romantic song. It's a song of love, of companionship, of a relationship that's developing over time, that's growing with time. You know, so it was amazing, the shoot. It's always nice to shoot scenes like this. You know, it's a nice environment created by Bijoy. And of course, wonderfully written by Vinod himself. Yes, written by me. I want to scroll going at the bottom. TV में नीचे लगाना. Entire interview for 24 hours. Farhan, why are most of the scenes in slow motion? Is that a planned thing? Sorry? Why are most of the scenes in slow motion? You know, because I think when you're with somebody you really love, you want time to slow down. You want to spend as much, and every moment, every second matters. So it really is one way, I guess, metaphorically, of showing you that everything is there to be remembered as a memory, every single second. And now I'll check with Bijoy and tell you whether that's true or not. आप दोनों से एक सवाल है कि एक सीन होता है जहाँ पे आदित्य मतलब परफॉर्म कर रही है और सडनली आप आते हैं. She was performing on the checkerboard. चेकबोर्ड का मतलब जो टाइल्स होती है, क्या पर्पसली लिखा गया था या मतलब कोइंसिडेंटली हो? सर, इस फिल्म में जो कुछ है ना, सब पर्पसली किया है, सब पर्पसफुली. उसमें कोई विदाउट पर्पस कुछ नहीं है. गाना भी हमने पर्पस के साथ ही लिखा है. क्या कारण था एक्चुअली? देखिए, मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे. मैं तो ऐसे भर रहा था. और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाएगा. लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया. ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, एक गाना बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. वो धुन थी. हाँ, that's right. वो लक्ष्मीकांत जी ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक. तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा. तो ये हमारा 1 2 3 है. Oh, you saw that? Good. Yeah, mood changes after that. That's so. Can you just briefly what exactly? Sir, उसके लिए how the mood 8th of January is a very very important day. वो hearing किसकी है, वो खून किसका है, कौन उठाता है उसे, all this you will know when you watch it on there. But yes, thank you for noticing. Yeah, I'm glad you noticed. I was scared के. जी, ये बिल्कुल वही है. ये वही है. वो उसमें डस्टिन हॉफमैन और एड नॉर्टन उस वक्त हमारे साथ काम कर रहे थे और ये उसी फिल्म का हिंदी वर्जन. very beautiful. It's like was simple but then with beauty you can say. What have you to say about your role in fact, like in this particular? I don't want to tell you too much about it because it's a mystery thriller ultimately about the look. Yeah, you get it. About the look. Abhi the look I'll have to put you through to my grandmother and my mother. Acha sadgi. Yeah, it's a simple but with beauty you can say. Yeah, but that is the part. Yeah. That is the part. It's a sort of gentle, sort of very loving. It's a relationship which is sort of steeped in love and like what I think Farhan has said a lot, and I don't want to say more because it is a mystery thriller. चुप. बस इसको कुछ नहीं. कंपटीशन आपके और अमित जी के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन देखने मिलेगा. सर, कंपटीशन में उनके साथ अब क्या कंपटीशन करूँगा यार. नहीं, ऐसी बात नहीं है. The fact is it's a great collaboration and it's nice because you know you want to challenge each other when you're working in a scene. And honestly, as an actor, I'm still very young, you know, and I've grown up seeing his films, seeing his work. I'm a huge admirer of him. To work with him was fantastic. बहुत खुशी की बात थी. And then of course to be like stimulated by someone, you know, when you're on set, by someone who's so good at what he does. I mean, I think it really helped me up my performance as well. So that's all I can say. फरहान, हम लोग 3 दिन से लगातार मिल रहे हैं, तो this was with the purpose like कि yeah it was. सर, ये मैंने प्लान ही इसलिए किया था ताकि मैं आपको 3 दिन इन रो में. ये प्लान ही ऐसे हुआ है. क्योंकि otherwise you don't meet me, you don't answer my calls. क्या करें? Farhan sir, don't you think like I like the song, but don't you think the lyrics that are been तेरे को आजकल बहुत common हो रहे हैं? यार मैंने लिखे है यार, कमाल कर रहा है तू यार, मुंह पर बोल रहा है ऐसा कैसा. भैया ये लिरिक्स जब लिखे थे तो फाइनल नहीं थे, मैं बोल चुका हूँ.
पर जिन लोगों ने सुना उनको इतने अच्छे लगे कि ये रहने दिए मैंने। तो आप ऐसा लेके चलिए कि लिरिक राइटर इसका बिल्कुल बेकार लिरिक राइटर है लेकिन उसको अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा तब ने रख दिया। नहीं, और ऐसी बात नहीं है। The fact is that when you talk about love, you're going to talk about romance, you're going to talk about pining, you're going to talk about longing for each other. तो उसमें there are only that many words in all honesty that also can be used. तो context में when they fall in correctly, I think that's more important. अगर आप सिर्फ वर्ड्स को पकड़ के चलेंगे तो फिर प्यार कितना यूज हुआ है, I love you कितना यूज हुआ है, you know, मोहब्बत कितना यूज हुआ है, इश्क कितना यूज हुआ है, तो देन व्हाट डू यू यूज? बोलना तो पड़ेगा, आपको दिल की बात तो बतानी पड़ेगी। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज 7 साल का पहला ही वीक रहेगा। इनफैक्ट लाइक पीपल हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू ईयर एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट रिलीज होगी। What was that was also decided as you said everything is planned. देखिए हमने इस पिक्चर के पोस्टर पे लिख दिया है दिस न्यू ईयर मेक योर बेस्ट मूव, मगर उसका हम बोल नहीं सकते, हम थोड़े हम्बल हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि दिस इज मेक सी योर बेस्ट मूवी। अब बोलना नहीं चाहिए हमको खुद ही, पर हम सीधा बोल रहे हैं कि आप आके देख लीजिए। आपने एकलव्य, आपने अमिताभ बच्चन के साथ फिर से काम करा, आपने एकलव्य, तो जब भी बच्चन साहब आ जाते हैं आपकी मूवी में तो आप कैसा फील करते हैं? मतलब डू यू फील स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब बहुत अच्छे एक्टर जुड़ गए तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा? देखिए बच्चन साहब हो या फरहान के साथ मैंने पहली बार काम किया, या आमिर के साथ हो, या जिसके अनिल कपूर के साथ जाके, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो कैरेक्टर किरदार जो है वो फिल्म में बिल्कुल एकदम जम जाए। और इस फिल्म में जो मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज़ है कि मैंने जब फिल्म देखी, मुझे बोला गया कि जावेद अख्तर के बेटे हैं फरहान साहब, इनका पहला एक्शन मूवी है। तो मुझे यकीन नहीं आया फरहान के इनका पहला एक्शन मूवी, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक्शन किया है, ऐसे गन लेके चलाते हैं कि सारी ज़िंदगी गन चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी कि हर कलाकार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, फरहान अख्तर हो, अदिति हो, हर कलाकार उसको बिल्कुल, और निर्देशक इसके बिजॉय बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोग फिल्म को बनाएं। My comfort level while doing romantic numbers. हाँ, नहीं, I'm comfortable doing romantic numbers and romantic alphabets. You should ask me this question. मतलब you mean with Aditi? How come? Even on his own, like how? Yeah. अकेले में romance. There's another word for that. Aditi, we see. Sorry. Aditi, we see shades of classical dancing in the song. Do we get to see a full-fledged performance of the movie as well? You're not allowed to say that. Yeah, I don't think I can tell you too much about this. But yeah, Ruhana is established as a dancer in the film. She's a dancer, and since I've been dancing from whenever I can remember, it's been incorporated into it. See, when I was casting the film, I saw her test dancing, and I was looking for a dance. It took me 1 second to say Aditi Rao Hydari. So she's done a great job, I think. Farhan, how much do you enjoy action performances, and we'll get to see you more of action? Well, I hope so. I had a wonderful time doing action. I've directed it a lot. मतलब लक्ष्य में direct किया है, Dawn series में मैंने direct किया है. But it's a different experience when you're putting it together, and different when you're doing it. और for me it was also great just to add to it, क्योंकि जो इसके पहले जो फिल्में थी, रॉक ऑन थी, या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक थी, उसमें हमेशा मुझे बहुत पिटाई हुई है। अर्जुन स्लैप मी, ऋतिक स्लैप मी, राम कपूर असॉल्ट्स मी, यू नो, तो मतलब इतनी भड़ास थी मेरे अंदर कि अभी एक मौका मिला कि मैं लोगों को पीटूं, गोली चलाऊं, उन पे लात मारूं, I was so excited. It was too much fun, too much fun. So no wonder you did so well. I'm sorry I'm late. I was looking for an opportunity to have you here and speak to you. वो अंदर सेपरेट करेंगे इस फाइल। So are we done? Shall we? Is everything done here? A quarter of our life is like being spent in Lightbox these days. Oh, yeah, wonderful. Yeah, so I was just thinking that probably if you have a seat, you can make some better arrangement, like some location is too supporting. You see how the lights are kept. A bit airy for the cameramen, so that we can stay here for 5 hours, 6 hours. Like No, so next time we'll try and organize it differently. No. For When we do the even screening, if you're not there, like the screenings are happening from the studio, if something can happen. Viduji is very rich, so probably he can. यहाँ पंखा लगवा दे। पंखा लगा दे। क्या बोलिए? अच्छा विद्यु जी, I'm making a cinema hall in Bandra. It'll be ready very soon. सब लोग यही आते हैं actually.
तो यहाँ पर फैन लगा देते हैं। एक पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब ये जगह बनी थी ये इस पर्पस के लिए नहीं बनी थी। It was only meant for people to get down and walk inside. So now that this is seeming to emerge as some spot where many people are going to be doing. तो हम कोई कुछ इसका करेंगे। Thank you for this. और ये देखिए कितना मासूम लग रहा है देखिए। चलिए हो गया, अभी वजीर की बात करिए हम। ऐसे है बात करने दो। They both have their own sets of challenges and both are equally as enjoyable. But this is a much longer discussion. But I've had a great time working with him in either capacity. But any tips that you took from acting, any notes that you exchanged as far as You know, it's you don't really go and speak to somebody like that. They give me tips. You know, no, seriously, I don't mean this as a joke. You really don't do that. But you observe. You know, and the best learning you can get is from observing somebody, how they approach their work, and to see his enthusiasm after like 45, close to almost 50 years now. You know, working in the industry, still that excitement, still that enthusiasm, still that need to like want to better himself with every scene. You know, and that is it's amazing learning. You know, we are all very young, and we feel that hopefully we'll feel the same way. You know, when we arrive, if we arrive at that place that he is at today. what is the kind of action that you personally You know, this film, he rehearsed for 8 days. How many days? 8 days we rehearsed this film before shooting. And we actually rehearsed in his house. He fed us all. We sat there and rehearsed. Now, this you don't find in a person who has done so much for so many years. So he's exceptional. Absolutely exceptional. Varun, what is the kind of action that you enjoyed? Is that the James Bond kind of action or the more Rohit Shetty kind of action that suits you? I don't know what the difference is. I mean, the fact is that you want to just go and do the best, what's meant to be right for that film. Different films will have different kinds of action. You know, this is pitched in a very real, very hard, very gritty kind of way, which I think Bijoy is really good at, because I think that's what he enjoys as well, probably even to watch. So it feels very, very real when for us to also get to do it, and I enjoyed it tremendously. It's very hard. Tense person थोड़ा गुस्से वाला लगता है। हाँ? थोड़ा गुस्से वाला है एक्चुअली कैरेक्टर में। You are a little bit थोड़ा। He's smiling so much. मैं गुस्से वाला। नहीं, फिल्म में भाई गोली कोई चलाता तो गुस्से में चलाएगा, हंसते हंसते थोड़ी चल तो पागल होगा। हंसते हंसते मैं तुमको मार रहा हूँ यार, ऐसा कि मैं मार ही डाल। गुस्सा आएगा तो ये तो गोली चलाएगा। All characters are meant to be. So let's not be shocked कि इस character में कुछ complexities हैं। But when Viduji said you look like someone who is pro with the guns, have you had some gun training before? I have told him not to say that publicly. Nowadays it's very misleading to say things. मैं बहुत पहली बार उठा रहा हूँ पिस्तौल। उसकी करेंगे बात आज वजीर की कीजिए, वो भी बना डालेंगे हम आपको, वो भी बता देंगे इसके बाद। ठीक है। अमिताभ जी बहुत प्रमोशन कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम। पहले तो उन्होंने ही सब शुरू किया, खेल खेल में ये सब। अब धीरे धीरे करते ना, सब लोग लेके आएंगे। तो अभी हम सिंगर्स लाए हैं, आज गाना रिलीज है जिसमें अमिताभ जी नहीं हैं, ये हैं, और जो सिंगर्स हैं वो आए हैं। एडिंग टू दैट, जैसे गाना जो इन दोनों के बीच में, क्या हम एक ऐसा कोई गाना देख सकते हैं जो शायद फरहान और अमित सर के बीच में कोई? ज़रूर, आप देखते जाइएगा, हर हफ्ते हम रिलीज कर रहे हैं, वो भी तो कुछ हम आपको दिखाएंगे, आज के हम सब बता दें। अभी आप सिंगर्स जब भी मैं विनोद जी के साथ में काम करता हूँ और पिछले कई साल से करता आ रहा हूँ, तो इनकी ब्रीफ मुझे इनके कहीं बिना भी मिल सकती है, क्योंकि इनकी जो आत्मा है, इनके सोल से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इनकी थॉट प्रोसेस, इनका पैशन, चाहे कोई भी फिल्म हो जहाँ सिर्फ प्रोड्यूसर भी हों, डायरेक्टर भी हों, या फिर इसमें लिरिक्स राइटर भी हैं साथ में। सो इनसे मेरा एक ताल्लुक़ इतना लंबा और आर्टिस्टिकली बहुत अच्छा रहा है। सो जब इनका गाना होता है, वी ऑल नो कि कुछ सिंसियर काम होने वाला है, कुछ अच्छा काम होने वाला है, जहाँ पे म्यूज़िक को, लिरिक्स को और आवाज़ को प्राथमिकता दी जाएगी और बाद में फिल्म भी अच्छी बनेगी। सो जब ये गाना भी जब हमने गाया था, तो शांतनु मोहित्रा जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, इनके साथ बहुत अच्छा हमने यादगार काम कर रखा है हर फिल्म में। ये गाना जब दिया गया तो मन पड़ा इनकी लिरिक्स है, और फिर हमने ये गाना गाया। सो इट्स ऑब्वियसली उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आप गाना सुने? नहीं सुना। आई थिंक इट्स सो, आई मीन वी ऑल न्यू दैट ये इनके अंदर था, ये मतलब एक और टैलेंट था।
ना उन्होंने प्रूव कर दिया कि ही इज़ अ फैंटास्टिक लिरिसिस्ट, और ये इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन में काम हुआ है। और जैसे सोनू जी ने कहा कि हम इनकी आत्मा को अब समझ चुके हैं कि इनकी जो सोच है, इनके जो पैशन फॉर गुड सिनेमा, गुड म्यूज़िक, एवरीथिंग ब्यूटिफुली आर्टिस्टिक, ही वोट्स फॉर इट, ही लाइक टोटली गोज़ आउट फॉर दैट। तो इतना सुंदर उन्होंने ये गाना लिखा है और कंपोज किया शांतनु दा ने। We enjoyed singing this one. There is so much of soul and melody and romance, और उतना ही सुंदर पिक्चराइज किया है। So we absolutely enjoyed. सर, जब आपने गाना लिखा था तो आपने डिसाइड कर लिया था कि इन्हीं दोनों लोगों से गाना गवाएंगे? देखिए, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि these two are two of the best singers we have in the country. इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और ये बोलने में मेरे को ज़रा भी झिझक नहीं है। तो जब बेस्ट लोग अगर आपके साथ काम करना चाहें तो आप क्यों ना बोलेंगे। और बहुत बहुत मैं खुश हूँ इन दोनों के साथ बड़ा लंबा मेरा रिश्ता है। परिणीता में किया, बहुत फिल्मों में किया, लेकिन बहुत एक मन से। सोनू को एक बार हमने 6 बार गवा दिया, 8 बार गवा दिया, तो दुखी हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा पूरा अंधेरा कर दो, तो अंधेरा कर दिया। अंधेरे में इन्होंने गाना गाया, और जब वो हमने लाइट ऑन की तो इनकी आंखों में आंसू थे, क्यों मुझे समझ में आ गया। श्रेया हमारे पास, संजय बंसाली हमारे असिस्टेंट थे, ये उनके पास गई। हम सिंगर ढूंढ रहे थे, तो संजय को हमने ज़ोर से फ़ोन लगा के बोला, यार क्या तू कर रहा है? कोई कहता है सर मैं भेज रहा हूँ, तो उन्होंने इनको भेजा और ये आज यहाँ हैं। तो इनके साथ तो हमारा ऐसा है कि बहुत वेरी क्लोज। एक बात कहना चाहेंगे कि गाने इजी होते हैं जो जितनी ज़बान पे याद हो जाए, लोग गुनगुना लेते हैं, आसानी से याद हो गए गाने। ये बताइए, एक लंबा एसोसिएशन आप दोनों के बीच में, इससे ज़्यादा गाने भी मिलेंगे फ्यूचर में? वो गाना चाहेंगे साथ में, क्योंकि डिफरेंट हम तो गवाएंगे हम तो गवाएंगे। आई थिंक ये ऑडियंस चाहती है हमेशा कि इस कॉम्बिनेशन में गाने और आए। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे दैट आवर वॉइसेस हैव बीन रियली लव टुगेदर, और आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सिंगिंग विथ हिम। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, और मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ। व्हेन ही वाज in Saregama and I was a contestant, so I have looked up to him as a singer, and today I get to sing with him such beautiful songs. It's just every song is a learning experience, और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो I hope चलो श्रेया में तारीफ मैं बोलता हूँ। एक्चुअली श्रेया एक ऐसी सिंगर है जो मुझे बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि श्रेया की आवाज़ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हरकतों के अलावा एक्सप्रेशन जो आता है वो बहुत सही आता है, जो हम लोग सब इस बात के कायल भी हैं। तभी मेरे हिसाब से अगर ऑल टाइम सिंगर्स में चुना जाएगा तो बेस्ट में तो उसका शुमार होगा। तो इन दैट सेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। बड़े खूबसूरत गाने, 2 अल्फाज 2 लफ्ज़ गुनगुना दें यहाँ पर दोनों साथ। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना जीना नहीं, मरना नहीं, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। अरे पहले आपने ये गाना लॉन्च किया, क्या रीजन था? हमने लिखा है हमने कहा अपना ही झंडा गाड़ दे। धन्यवाद। Thank you so much. Don't watch TV. Indian Idol I was on, then I've traveled, I've done so many shows, I've been doing a lot of appearances, I'm walking the ramp. So it's been actually been a very, very busy year for me, and I couldn't be